So now we have taken 4 common here, correct? We have taken 4 common here, Yes. fine. So this becomes Yes. 1 plus 5x by 4, 1 minus 7x by 4, correct? On the next page, Yes. what I do here is, all right, 1 by 4 log of 1 plus 5x by 4 minus log of 1 minus 7x by 4. ठीक है? Fine. Yes. This is equal to log. Yes. This is equal to log k. This is 4 by x. This is 4 by x. Okay. This is 4 by x. Okay. Now 4 by x, I do log of 1 plus 5x by 4. Okay. Upon 1x by 4. I can do, take it here. I didn't write it here. And here also write log of 1 minus 7x by 4. Okay. Upon x by 4. ठीक है, ऐसा लिखा? Yes. अब तो सिंपल, तो सिंपल हो गया ना, लिमिट x is tending to 0 here. अब तो सिंपल हो गया. तो यहाँ पे मैं 5 into 5 कर सकता हूँ और यहाँ पे 7 into 7 कर सकता हूँ, मतलब -7 है कि नहीं? हाँ. है कि नहीं? एंड में फिर ये माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस कर दिया, सो दिस रिमेन्स अवर 7 ओनली. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? log of 1 minus x by x क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. लिमिट, और I'll just keep it minus only. ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते यहाँ पे. ठीक है, I'm not keeping much of the confusion here. Okay, I'm just simply writing it as minus log of 1 minus 7x by 4. Okay, upon 7x by 4 into 7 into 7. ठीक है. अब ये कितना है? log of 1 minus x by x क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. लिमिट, हेलो यार, ये तुमने यार Yes. अब तक याद क्यों नहीं किया तुमने? अब तक याद क्यों नहीं किया तुमने? हेलो, यू हैव एनी रीजन? Yes, sir. अब तक याद क्यों नहीं किया? Okay, we go back to the continuity chapter here again. Limits वाला chapter. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Radha. Yes. Radha is there? We go back to the limits वाला chapter. Now, what is this? Log of 1 plus x by x, limit extending to 0. ये क्या है? 1 है, करेक्ट. एंड log 1 minus x by x, limit extending to 0 क्या रहेगा?
Okay, we have a Taylor series. Do we have the Taylor series for 1 plus log of 1 plus x? Or we can simply do one. Yes. We can simply do one thing. I can simply apply N-Hospitals rules right now. Since we are going to go to differentiation, okay, I'm not afraid of applying that rule. So e minus 1 upon 1 minus x, okay, और ये 1 रहेगा, and here x is tending to 0, so this is equal to minus 1, or this is not equal to minus 1. Is it equal to minus 1 or yes, this is equal to minus 1, correct है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे पास में क्या मिलता है मुझे? यहाँ पे मुझे 5 मिलता है और यहाँ पे मुझे -7 + 1, मतलब ये लिमिट इज -1 and this is 7, so this becomes our +7. I get here 12 is equal to log k, ठीक है? So k is equal to power 12. E raised to 12. Yes. We have the answer now. Do we have the answer now? Do we have the answer now? Yes. Yeah. Okay. So I guess the answer is e raised to power 12. C. C. E raised to 12. Yeah. We have to quickly move to differentiation. Okay. If we are planning to differentiation today, then we have to quickly move to differentiation. Okay. And we directly go to the chapter of differentiation in our class 12th. We don't have to revise the class 11th वाला chapter because this is उसका continuation ही है, इसमें कुछ अलग कुछ नहीं है, ठीक है? Hello? Yes, sir. So I guess we can start differentiation right now. Okay? And I guess तुमने खुद like you have had your snacks वगैरह जो भी तुमको खाना था सब खा लिया तुमने. Then you have come back and joined the class. So this is जितना बड़ा दिखता है चैप्टर ये उतना है नहीं. This is a very simple chapter. इसमें अलजेब्रा ज्यादा है. Okay? इसमें अलजेब्रा ज्यादा है. Okay? Multiplication of the the polynomials and all those things. Okay? वो चीज ज्यादा है यहाँ पे. Trigonometry का भी इस्तेमाल है यहाँ पे. So that is why trigonometry prerequisite for this kind of a chapter. Okay? Trigonometry हमें खत्म करना ज्यादा जरूरी है. ठीक है? So that we are able to have a good grasp on this chapter, differentiation. Okay? Yes. So it looks quite big, but it is not that big. It is a very simple chapter. Okay? So यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि they have given the derivatives of composite function, derivatives of inverse function, derivatives of implicit functions, higher order derivatives, logarithmic differentiation, derivatives of parametric functions, geometrical meaning of derivatives. Okay? So I guess you have studied all these identities जो भी यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है in your class 11th. Do you want to recall everything? You remember everything? Hello, Radha? Yes, sir. Yes, sir. You want to recall or तुम्हें सब याद है? याद है sir. Okay. तो I guess हमें differentiation में फिर इतना प्रॉब्लम को जाना नहीं चाहिए, ठीक है? U and V are differentiable functions of x such that y is equal to u plus v, then dy by dx is equal to du by dx plus minus dv by dx. These are very simple rules. You have studied this thing. Okay, u by v का differentiation. ठीक है? So this is also very simple. ये भी तुमने study कर लिया है. इसमें कोई doubt है क्या? नहीं. Okay. So we are going to derive the derivation of composite function. Okay. So dy by dx is equal to dy by du plus into du by dx. This is how they have given it. Okay. And we will see कि हम लोग कैसे कर पाते हैं. इसमें कितने टाइप के मतलब
जितने भी अंदर कंपोजिट फंक्शंस होंगे वो सारे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस से ये भी चीज तुमको काफी अच्छे से पता है, राइट, है कि नहीं? हेलो, ये Yes. कुछ कुछ कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेशन जो है वो कैसा कैसा है रहता है। सो इफ वी हैव साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स देन वी राइट कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एफ एक्स, करेक्ट, वेरी सिंपल। सर हाँ हाँ एक्चुअली कंपोजिट फंक्शंस ना हाँ, बुक में था हमारे, पर वो सिखाया नहीं था कॉलेज में क्योंकि ये सिलेबस से रिमूव किया गया था। ओके, अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सो व्हेन आई एम रिवाइजिंग, व्हेन हम्म, आई एम ब्रशिंग थ्रू, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ आता है या नहीं आता है करके, ठीक है। हाँ एंड सॉरी, क्या हो गया? सो आई गेस कैन वी डू सम सॉल्व एग्जांपल्स और वी कैन स्किप देम, बताओ। हेलो मानस, do you want me to यस। do solved examples? नो सर, दे आर इजी आई थिंक। Okay, they are easy. Okay, so we can यस go ahead then. यस यस। Okay, so we can directly go to the exercise then. We'll just solve one problem from यस the exercise. Okay, one or two problems from the exercise, correct? हाँ यस। Yes. Now we have this is a very good example that will help us solve the understand the concept of composite function. Okay. Hello. यस सर। Now f of g of x इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, so I have just go back here, clean this slate. So we have f of g of x, okay, correct. And if I have to find f यस dash of, so I have to find this इसका पूरा डिफरेंशिएशन, so इसका पूरा डिफरेंशिएशन will be f dash of g of x, okay, into g dash x, correct, yes or no? हाँ हाँ है कि नहीं, ऐसे रहेगा ना, यस f dash of g of हाँ x into g of x. So if I have to find the differentiation at one point x is equal to 2, so iska agar suppose if I take it as y, so dy by dx at x is equal to 2, yahi pucha hai na unhone, hai ki nahi? So this will be f dash of g of 2, correct, into g dash of 2, hai ki nahi? यस यस Correct. Now g dash of 2 दिया है उन्होंने, right, g dash of 2 दिया है उन्होंने और g of 2 दिया है, g of 2 एंड g dash 2 दोनों दिया है, ठीक है, तो g of 2 ने 3 दिया है, सो f of g of 2 3 हो गया, मतलब f of 3 मतलब f dash 3 into g dash of 2, करेक्ट, है कि नहीं? यस f dash 3 दिया उन्होंने, राइट, f dash 3 is -1, so f dash 3 is -1 into g dash 2. What is g dash 2? G dash 2 is equal to 5, correct? यस The answer is -5. Fine. यस सर। Now we will take one more question. Okay. Hello. यस सर। Can we take this particular problem? This looks very simple to me. ये वाला जो है 14th वाला मुझे काफी simple लग रहा है. I want to take this particular problem. 18th वाला. Can we take 18th? This should be sufficient. Correct? यस Okay. यस Okay. Log of a raised to power cos x upon whole upon x square. क्या है, x square है कि x cube है वो, x square minus 3 whole cube, x square minus 3 whole cube into
इंटू log x। x। ठीक है, ये पूरा ऐसा है, इसका y है हाँ। dy by dx हम्म, इज इक्वल टू, और लेटेस्ट से मैं पहले y को सिंप्लीफाई करता हूँ, आई राइट log ऑफ a raised to power cos x, फाइन, माइनस yes log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब माइनस log ऑफ log x। ठीक है, हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ओके, हाँ, सो अब इसको मैं फिर से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं सिंपली cos x इंटू लॉग ए ऐसा लिखता हूँ, है कि नहीं, cos x इंटू लॉग ए ऐसा लिख दिया ना मैंने। हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये ठीक तो है। कांस्टेंट हो गया। Now if I have to do this, अगर मुझे dy by dx इसका फाइंड आउट करना है तो मेरे लिए अभी काफी सिंपल हो गया ना, है कि नहीं, तो मेरे लिए yes काफी सिंपल हो गया। आई गेट माइनस साइन एक्स लॉग ए माइनस, अब यहाँ पे मैं 3 वैसा लिखता हूँ यहाँ पे बाहर, एंड आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू व्हाट 2x। ठीक है, ये लिख दिया, हम्म, फाइन, हाँ, एंड माइनस 1 बाय लॉग एक्स, ठीक है, इंटू 1 बाय एक्स। ठीक है, फाइन। हम्म, हाँ, अब कोई डाउट है, इससे ज्यादा और कुछ सिंप्लीफाई नहीं, कर सकता हूँ क्या? नहीं, दिस इज सिंपल राइट। नहीं, हाँ, yes या वी आर डन, वी आर डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, कुछ नहीं है इसके आगे। ठीक है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो कर सकते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, yes ओके, नाउ वी आर गोइंग टू yes द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, so they are giving an example for that. Let us say f of x is equal to 2x minus 2, then f inverse x is equal to x plus 2 by 2, correct? And g of x, now let g of x is equal to f inverse x. Then if you find the derivatives of these functions, we see that d by dx of x is equal to 2, d by dx of g of x equal to half. So ये बोल रहे हैं कि now they have given some basic rules also. f of x has to be 1 1 and onto then f inverse y exists, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उन्होंने फिर एग्जांपल 1 मैंने अभी जैसे बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे लिखा है, f इनवर्स x लिखा है, g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x लिखा है, और फिर उन्होंने उसका डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, yes so they are saying that d by dy of f inverse y is equal to 1 by f dash of x, और dx by dy is equal to 1 by dy by dx। ये तो मतलब इन्होंने इस एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल 1 के थ्रू ये प्रूफ किया है। So dx by dy is equal to 1 by dy by dx. This is what they have proven here. Okay, we don't have to go into the proof. Okay, we don't have to go into the proof. Okay, there are some solved examples. Let us skip the solved examples, and then we go directly to the, you know, this particular thing, solved examples. There are some very important identities, ठीक है, जो हमको इंटीग्रेशन में काम आएगी, If we have y is equal to sin inverse x, then dy by dx is equal to 1 by under root 1 minus x square. Fine, cos inverse x के लिए माइनस है, yes tan inverse x के लिए 1 by 1 plus x square है उसका डेरिवेटिव, cot inverse x के लिए माइनस 1 by 1 plus x square है, second inverse x के लिए भी दिया हुआ है, cosec inverse x के लिए भी दिया हुआ है। Do you want me to prove any of these? राधा, तुम चाहते हो कि प्रूफ करूं? नहीं सर, हाँ, नहीं okay, नहीं सर। I hope you have by hearted this because this was part of your board exams, so ये तुमको by heart तो होना ही चाहिए। ठीक है, fine, yes and they have given some important formula also, ये सब भी हम लोग एक्चुअली कर चुके हैं। ठीक है कि नहीं, and they have given some important substitutions, तो ये substitutions कब आते हैं, हमारे इंटीग्रेशन के टाइम आते हैं, है कि नहीं, when we have something like this, then this comes during our, those kind of substitutions come handy। ठीक है, I'm not going to, you know,
इतना डीपली मैं इस टॉपिक को इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है पार्ट 2 का सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। The difficult part comes when you have to solve some tricky integration and definite integral problem। लेकिन उसमें बहुत सारे concepts involved है, जैसा कि मैंने ये बोला था कि इस चैप्टर में मैक्सिमम अलजेब्रा है। फाइन। हाँ हाँ ओके, सो या व्हाट कैन आई डू हियर? कौन सा प्रॉब्लम करूं मैं, आप ही बताओ। एक्सरसाइज 1.2 में से जस्ट 1 मिनट। यस, कैन यू टेल मी कौन सा प्रॉब्लम कर सकता हूं मैं? 8 का 5th वन। 8 का 5th वाला। ओके, 8 का 5th वाला। राधा, you have any other suggestion for this? सर 7th का हम्म, 7th का 12th वाला। 7th का 12th वाला। ओके, ठीक है। 7th का 12th वाला पहले करता हूँ मैं। क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशिएशन ही करना है आपको, मतलब डिफरेंशिएट ही करना है, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। ओके, सो आई हैव, इज इट लाइक ऑफ द फॉर्म cot inverse this plus this minus this? Here it is 1 plus, क्या दिया है? 1 plus sin 4x/3। ऐसे मैं sin a, इसको sin a लेता हूँ, और ये अंडर रूट, ये प्लस है ना यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन ए माइनस साइन, 1 माइनस साइन, ऐसा ले सकता हूँ मैं। 4x/3 को मैं a पकड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। 4x/3 को मैं a पकड़ रहा हूँ, ठीक है। माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ऐसा ही है ना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, राइट? ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, करेक्ट। तो थोड़ा अंदर सिंप्लीफाई करते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे नीचे जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। हाँ सो कॉट इनवर्स मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 प्लस साइन ए, और ये यहाँ पे माइनस 1 माइनस साइन ए, ऐसा मिलेगा, करेक्ट। और ऊपर Yes. यहाँ पे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे फिर और क्या मिलेगा यहाँ पे? प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं? ऐसा ही मिलेगा ना? हाँ ये कट गया, ठीक है। एंड आई गेट कॉट इनवर्स यहाँ पे 2 प्लस, अब 2 कॉसे हो गया यहाँ पे, ये कॉसे हो गया ना ऊपर, हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ और यहाँ पे 2 हाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ उसके बाद में फिर क्या है? कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस, ऐसा ही मिला मुझे। हाँ So I get only 1 plus cos a. Fine. So this is equal to what? अब इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं। So d by d x of cot inverse, 14 6। हाँ कैसे करूँ फिर इसको मैं?
फिर इसका सीधा मतलब -1 बाय 1 प्लस x अपॉन स्क्वायर होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ इनटू, और यहाँ पे a है ना मेरा, सो आई गेट हियर लाइक दिस हाँ d by dx ऑफ a, करेक्ट? यस ओके, इज इक्वल टू -1/1 प्लस 1 प्लस cos a होल स्क्वायर, ठीक है? और d by dx ऑफ cos a क्या रहेगा? माइनस साइन a रहेगा। माइनस का साइन है। हाँ हाँ, तो और फिर ये a जो है इट इज साइन 4x/3, राइट? है कि नहीं? a इज इक्वल टू 4x/3 है ना, 4x/3 है, राइट? 4x। a इज इक्वल टू हाँ 4x हाँ इंटू 4/3, है कि नहीं? हम्म। कोई डाउट है इसमें? नहीं ओके, so here I get -1/1 plus so can I write cos a is equal to what? 1 plus cos a is what? 2 cos square 4x/3, ठीक है, होल स्क्वायर, है कि नहीं? और यस ये माइनस माइनस कट गया, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर एज 4/3 इंटू साइन 4x/3, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? यस इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं नहीं। ओके, सो यही आंसर है। और कुछ सिंप्लीफाई होता है कि नहीं होता इसमें? रुका कॉल करो। होता है इसमें कुछ कुछ सिंप्लीफाई होता है? नहीं मतलब यहाँ पे 4x/6 आएगा, ठीक है, समझे? ये a है ना, सो दिस बिकम्स 2 cos square a/2 रहेगा ना, यहाँ पे 2 cos हाँ square a/2 रहेगा ना होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 4 cos square 4x/6 रहेगा, ठीक है? अब इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है, नहीं ठीक नहीं है, है। हाँ सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? यस ओके, द अदर प्रॉब्लम व्हिच यू सेड, कौन सा था? 8th का, 8th वाले का 5th वाला, राइट? 8th वाले का 5th वाला, यही बोला था ना? हाँ ओके, 3 cos raised to ex plus 2 sin raised to ex upon 13। इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं लोग? बताओ थोड़ा सा। इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं? cos इनवर्स 3 cos e raised to x plus 2 sin e raised to x upon 13। cos इनवर्स क्या है वो? 3 cos e raised to x, 3 cos e raised to x plus 2 sin e raised to x upon 13, √13 है ना? यस सो √13 क्या है? √13 इज इक्वल टू 9 plus 4, हाँ ठीक है? सो √3/√13 is less than 1, यस yes or no? And 2/√13 यस is also less than 1, correct? राइट यस And if let us say if I take this is equal to cos theta, so this will be equal to sin theta, 1 हाँ minus 9/13, तो क्या आएगा? 4/√13 आएगा, इज इक्वल टू 2/√13 आएगा ना, है कि नहीं? हाँ सो अगर हाँ मैंने हाँ cos थीटा लिया तो ये sin थीटा रहेगा, करेक्ट? हाँ हाँ समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ सो यस
So on the next page, I'm writing here. How much time is left? Yep, 5 minutes are left. Okay. Cos inverse. Let us say this is cos A cos e raised to x plus sin A sin e raised to x. ऐसा हो गया ना ये? So ये cos inverse cos of A minus e raised to x ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? है कि नहीं? हाँ Yes or हाँ। no? हाँ. तो क्या बोला? A minus e raised to x मिला मुझे. ठीक है? फाइन. अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली माइनस ई रेस टू एक्स रहेगा इसका डिफरेंशिएशन. करेक्ट है कि नहीं? बस वही आंसर है. ठीक है. लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes, a tea break, then we'll be back. Okay? ओके. Yeah. कोई डाउट है इसमें? नहीं. Okay. So here there is something called as logarithmic differentiation, where there are like multiples of powers of some function of f of x. Okay, so the standard procedure is basically you take log on both the sides. Okay, then you differentiate. Yes. We take log on both the sides, and then we basically differentiate. Okay, and then we dy by dx is equal to some function, and then we multiply that y function into that dy by dx. So I guess this is simple. Let us see what have they given us for implicit functions. This is very simple. Hello, implicit functions are Yes, sir. can be represented in very various ways. Most of the functions we have dealt with so far have described an equation y is equal to f of x. Okay, so differentiate both the sides of equation with respect to x independent variable, treating y as a differentiable function of x, and calculate terms dy by dx on one side the equation and solve for dy by dx. Okay, so that is what they mean by implicit functions, where you are not able to separate the y and x terms, separately. Yes. What you do is they are differentiating it with respect to dy by dx. Okay, so here they have got dy by dx which is actually having the y term itself. ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हमको कुछ ज्यादा ये नहीं करना है. We cannot completely separate y from x here. ठीक है? Yes. Yes. Similarly for this thing also they have done, and then dy by dx वो एक साइड में लाके फिर then they are actually solving it. ठीक है? So also this dy by dx also has the y term. इसमें भी completely dependent on x नहीं है. ठीक है? y नहीं है. ठीक है? Yes. Yeah. So let us solve directly the exercises. I guess मतलब मुझे इतना कुछ ये नहीं लग रहा है कि we should spend much of the time in the theory. उसके बाद में we are left with derivatives of parametric function. Okay. Then we are left with the derivatives of what? Derivatives of parametric function. Yeah, then we have where u and v both are some functions of x, then we are left with those kind of functions. Quite simple. And उसके बाद में higher order derivatives. Okay, so higher order derivatives एक चीज है. And do we have a separate chapter, Radha, on application of derivatives? Yes, sir. Yes. Okay, so that is it covered in your portion or not covered? Manas? मतलब I mean Yes, sir. Means in your coaching is it has been covered, but yes. Yes, it was. it is covered. Okay. Yes. Okay. And differentiation is also covered, right? Or not covered?
Yes, it was covered. Okay. Mhm. So I guess this is, you know, this is where we are ending the chapter. So we are just left with one thing, that is logarithmic differentiation. Okay. And there is higher order derivatives and parametric differentiation. So these are the three things that are basically left to us, but they are very simple. Okay. They're very simple. I'm just going to take one example from each. Fine. Yes. Yeah. Now let us go to the logarithmic differentiation thing. Fine. So here we are. I'll take this fourth wala problem. Is it fine? Yes. फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला बताओ कौन सा कोर में, और फोर्थ का Fourth वाला. फोर्थ वाला दिस वन Yes. e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then show that dy by dx e raised to minus y minus e raised to y minus x. Okay, so e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, correct? Fine. Now Yes. we do differentiation on both the sides, correct? Yes. Okay. So we get e raised to x d by dx of e raised to x plus d by dx of e raised to y, okay, is equal to d by dx of e raised to x plus y, correct? Fine. इसका differentiation, इसका differentiation is equal to e raised to x only, plus इसका differentiation is e raised to y d Yes. y by dx, correct? इसमें doubt है? नहीं. पक्का ऐसे ही आएगा ना कि और कुछ आएगा? हाँ पक्का. नहीं. ओके ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन e raised to x plus y into 1 plus dy by dx, ऐसा आ गया? Yes. ठीक है, हाँ. ऐसा आ गया ना? हाँ. नाउ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि e रेस टू ये dy by dx वाले जो टर्म्स है वो एक साइड लाते हैं हम लोग, ठीक है? सो e रेस टू y dy by dx, ओके, फिर माइनस e रेस टू x plus y into dy by dx is equal to e रेस टू x plus y minus e रेस टू x, ठीक है? ओके फाइन. Now we get dy by dx common, okay, we get e raised to y minus e raised to x plus y, ठीक है, is equal to, अब यहाँ पे मैं e raised to x कॉमन लेता हूँ, so I get e raised to y minus 1, correct? Yes. Yes. Next page I go, dy by dx dy by dx is equal to what? E raised to x into e raised to y minus 1, e raised to x into e raised to y minus 1 upon e raised to y minus e raised to x plus y, e raised to y into e raised to, sorry, minus e raised to x plus y, ऐसा ही आया, ठीक है? So by dx is equal to e raised to x
इंटू ई रेस टू वाई -1 अपॉन, अब यहाँ पे जो है ई रेस टू वाई है और यहाँ पे सिर्फ माइनस है, सो आई कैन राइट दिस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, करेक्ट है कि नहीं? हाँ ठीक है, सो हाँ दिस बिकम्स योर e raised to x e raised to x plus y minus e raised to x. I'm again multiplying this thing, okay, upon e raised to the power what? Minus e raised to the power x, correct? yes And this term again I can write it as e raised to x plus e raised to y minus e raised to x upon minus e raised to x, correct? So this term gets cancelled, okay? Negate minus e raised to the power y minus x. Fine. हाँ वही पूछा उन्होंने, that's what वही किया हमने, yes ठीक है, या हाँ just give me 2 minutes. Hello, yeah, yes sir so can we take this particular thing, ninth वाला problem? okay Can we take this ninth वाला problem? yes sir Any idea how do we start with that problem? uh, Hello Radha, Yes, sir. why do you go into sleep mode? कुछ बोला करो ना, कैसे करना है इसको? I can write log y, I can take log on both the sides, okay, fine, is equal to x raised to x raised to x raised to x raised to dot 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 into log x, ऐसा आएगा ये, है कि नहीं? हाँ हाँ करेक्ट? yes Or if I take, there is one more way, there is one more way to do it. If I take log base x on both the sides, okay, so what I do is here I do here one thing, log y x is equal to x raised to x raised to x raised to dot 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 infinity, ऐसा आएगा नहीं, है कि नहीं? हाँ So log y x is equal to y, ऐसा है, this is also y, right? अपने को पता नहीं ना, yes है कि नहीं? We don't know, right? And what they have asked us yes to, what they have asked us to prove? They have asked us to prove that dy by dx is equal to y square by x into minus 1 minus log y. So what I take here is, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे log y by log x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, is equal to y. पहले भी मैं ऐसा लिखता तो वो वैसे ही आता, राइट? ऐसे ही आता ना, ठीक है? हाँ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों जगह पे मैं डी बाय डी एक्स लगाता हूँ, ठीक है, डी बाय डी एक्स लगाता हूँ, करेक्ट है कि नहीं? yes ठीक है, डी बाय डी एक्स yes लगाया दोनों साइड में, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा,
डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई, okay, into log x, okay, minus log y into d by dx of log x, correct, whole upon log x whole square is equal to dy by dx, right? ऐसे ही है ना? यस है कि हाँ नहीं? फिर उसके बाद में यहाँ पे log x, अब इसका डिफरेंशिएशन में करूंगा तो क्या आएगा, 1 बाय y बाय dx, करेक्ट, माइनस log y इंटू अपॉन x, करेक्ट, और ये log x होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू dy बाय dx, फाइन? यस कोई डाउट है? नो नहीं. फिर उसके बाद में आई गेट log x अपॉन y dy बाय dx माइनस log y अपॉन x इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर इंटू dy बाय dx, ठीक है? फिर now I have to, what I have to do is I have to take this dy by dx terms on one side, okay? I have to take this on one side, okay? So I take this term यस and this term on one side, okay? And I get I get minus log y by x or dy by dx into what? What is this term? Log x by y minus log x whole square. Log x by y minus log x whole square is equal to this term log y by x, correct? Log y by हाँ x, ठीक है? So dy by dx को अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं log x माइनस y log x होल स्क्वायर, ठीक है, फाइन, अपॉन y हाँ इक्वल टू log y by x, ठीक है? देन dy by dx is equal to log y into y upon x into log x, मैं log x भी बाहर ले लिया, so 1 minus y log x, ठीक है? यस This is log x whole square and this is simply y, ठीक है? कैसा मिला मुझे? हाँ अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने? log y होल स्क्वायर बाय log y माइनस 1, log y होल स्क्वायर, अब log y होल स्क्वायर है क्या? कैन वी बेसिकली सी दिस रिलेशन एक्चुअली? log y by log x is equal to y, ये है ना, यही रिलेशन है ना अपना, log y by log हाँ x is equal to y. Can we use this relation? No, we can use log x यस is equal to log y by y, log y by y. So I'm just substituting the thing here, log x equal to log y by y, log x equal to log y by y, ठीक है? यस dy by dx equal to log y upon x into log x into log x into 1 minus y into log y by y, ठीक है? ये y कट गया, log x की जगह पे फिर से मैंने log y by y लिखा, हाँ ठीक है? और
के बाद में dy by dx is equal to what? Log y upon x by y into log y into 1 minus log y. ठीक है? Yes. अब ये यहाँ पे ये y है, यहाँ पे ये y स्क्वायर हो गया. सो दिस इज y स्क्वायर log y upon x log y. अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एनीथिंग मोर पॉसिबल? अब ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से. ठीक है, यहाँ पे log y कैंसिल हो गया. ठीक है, और वी सिंपली गेट y स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस log y. सिंपली वी गॉट द आंसर. ठीक है, y स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस log y इज द आंसर. ठीक है. Yes. Now we have to move quickly to parametric differentiation. Okay, इसमें कुछ खास है नहीं. So x is some function of t, y is also some function of t, and then we differentiate with respect to x. Let us go directly to the problems. Okay. Yes. So I can just take these problems orally. Okay, fine. Hello. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. अगर सपोज हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है, टेकिंग दिस, आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम हियर. कैन यू सी दिस सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम हियर? X is equal to log of 1 plus t square and y is equal to t minus tan inverse t. We have to show that dy by dx is equal to under root e raised to x minus 1 by 2. Will you be able to do it? बहुत ही सिंपल है ना. dy by dx, पहले dy by dt फाइंड करना है और नीचे dx by dt फाइंड करना है और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है. मतलब पहले dy by dt फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और dx by dt फाइंड आउट करेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे. सो वी गेट dy by dx. करेक्ट. dy by dt Yes. फाइंड करना है, dx by dt फाइंड करना है और दोनों का रेशियो लेना है. ठीक है. प्लीज टेक 5 minutes for this problem. Okay.
Hello? यस सर. Yeah, were you able to do it? हाँ सर, मतलब किया प्रॉब्लम सॉल्व, पर वो ऐसा नहीं आ रहा. dy वैसा by नहीं. dx equals to root e raised to x minus 1 upon. ठीक है. Just 1 minute. Let's do that. Can you repeat the problem? Can you dictate the problem for me? Yes. Uh, Y क्या है? x equals to 1. हाँ, x equal to log y. of 1 plus x t equals to square. log of 1 plus t square. हाँ, y is equal to And y equals to t minus tan inverse t. tan inverse t. ओके, ठीक है. तो पहले मैं dy by dt फाइंड आउट करता हूँ. तो dy by dt is equal to 1 minus 1 by 1 plus t square. ठीक है. एंड dx by dt is equal to क्या रहेगा? 1 by 1 plus t square into 2t. ठीक है. हाँ. कोई डाउट है? यस. नहीं. सो dy by dt को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? t square अपॉन 1 plus t square. ठीक है. एंड dx by dt is equal to 2t अपॉन 1 plus t square. ठीक है. सो dy by dx अगर लिया ये 1 plus t square 1 plus t square कैंसिल हो जाएगा. एंड देन we'll be left t by 2. ठीक है. अब यस. अब क्या करना है? कैन वी राइट e raised to x is equal to 1 plus t square. यहां से मैं ले रहा हूं. हाँ, we can write. ठीक है. सो e raised to x minus 1 is equal to t square and t is equal to under root of e raised to x minus 1. करेक्ट? यस, करेक्ट. यही तो करना है फिर अपने को. e raised to x minus 1 upon 2. ठीक है. नहीं, मतलब वो dy by dx equals to t by 2 तक आ गया था, फिर उसके आगे वो मतलब कैसे करें कन्वर्ट. हाँ, ठीक है. e raised to x में. हाँ. तो समझ गया अभी? हाँ. ठीक है. ओके, डन विद पैरामीट्रिक आल्सो. बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ है नहीं है. दे माइट बी आस्किंग यू टू dy by dx वैल्यूज एट सम वैल्यूज, जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है. सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट, राइट? फाइन. यस सर. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मैंने कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स देखे थे. उन्होंने कुछ थियरीज यहाँ पे शायद डिराइव किए हैं क्या, मेरे को देखना पड़ेगा. राधा, डू यू रिमेम्बर लास्ट टाइम Yes, sir. हमने कुछ थियरीज डिराइव की है क्या? सम मे बी nth ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह ऐसा कुछ लेके उन्होंने कुछ थियरी डिराइव की है क्या? या दे हैव डन दैट मे बी. यस. हाँ सर, किया है. समथिंग लाइक दिस. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिए हैं उन्होंने. ठीक है. अब मानस, जस्ट टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स. ओके, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना यहाँ पे. आई होप यू हैव दिस बुक. ठीक है. तो यहाँ जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो उन्होंने ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया हुआ है. ठीक है. एंड देन इट एंड देयर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, समझ में आया यहाँ पे? यस सर. तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो निकल रहे हैं e raised to x ax का इनटू sin of bx plus c. ठीक है. जस्ट हैव अ लुक एट देम. ओके. यस. And then they have done something else also here. Maybe or maybe not. I guess ये हमने देखा कल. राधा, हमने लास्ट टाइम ये देखा था ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसका e raised to x into sin x bx का. इसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी पूछे थे. करेक्ट. और तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स है. ठीक है. And so here when you get your y2 is the second order derivative and y1 is the first order derivative. Correct? समझ में आया? यहाँ पे ऐसे वाले टाइप के प्रॉब्लम्स भी आते हैं. ठीक है. एंड सो दिस फोर्थ वाला जो है ना, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. ओके, दिस फोर्थ वाला जो है, बोथ ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और ये वाला तुम करके देखना. nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इन टर्म्स ऑफ n वगैरह. सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल. ठीक है. समझ गया? द चैप्टर इज डन फ्रॉम माय साइड. कोई डाउट्स रहे तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 24th. ओके, द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 24th. application of derivatives, I'm not going to go much deeper.
I'm just going to solve 2 or 3 solved examples, unsolved examples, sorry, and then we are going to start integration. Okay, on 24th. ठीक है? Yeah. Yes. चलेगा? Yeah. Thank you. What all things are there? Application of derivatives to tangents and normals. Okay. Derivative as a rate of measure. Approximations. Okay. Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, increasing and decreasing functions, maximum minima. This is the most important chapter in calculus. ठीक है? सब सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो या तो यहाँ से आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएंगे, या फिर आपके दूसरे वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो 6 एक्सरसाइजेस थे उसमें से आएंगे. एंड ऑब्वियसली indefinite integral functions, limits and continuity, it becomes easier at this level. मतलब अभी उसका इतना टेंशन नहीं है. मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे यहीं से है, बिकॉज दिस इज एप्लीकेशन, राइट? एप्लीकेशन इंजीनियर क्या करता है? अप्लाई करता है, राइट? जो थ्योरी सीखे उसको अप्लाई करता है, राइट? तो every exam will try to get the test of this application of derivatives. ठीक है? Okay. हाँ. So now application of derivatives in geometry. Okay. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में बोल रहे कि उन्होंने डेरिवेटिव स्लोप ऑफ लाइन के बीच में क्या रिलेशन है वो देखा. ठीक है? सो इफ dy by dx at x1 y1 वो ले रहा है, इट इज f dash of x at x1 y1. दिस इज कॉल्ड एज अ स्लोप, आल्सो ग्रेडियंट और टेंजेंट ऑफ द कर्व. ठीक है? ग्रेडियंट भी बोलता है. ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना. तो अगर सपोज उस पॉइंट पे अगर नॉर्मल निकलता हूं तो वो इस टेंजेंट को नॉर्मल रहेगा, एंड दैट स्लोप इनटू दिस स्लोप विल बी इक्वल टू -1, राइट? है कि नहीं? दैट स्लोप इनटू दिस स्लोप विल बी इक्वल टू -1, जैसे यहाँ पे लिखा है. ठीक है? आई जस्ट डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम. ठीक है? जब तक हम लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा. ठीक है? सिंपल. यहाँ पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है इसमें. ठीक है? जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस. ठीक है? फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस एंड द सरफेस एरिया आर चेंजिंग इन द वॉल्यूम इज 2885 सेंटीमीटर क्यूब. सो एक एक करके हम लोग करेंगे. ठीक है? लेट अस ट्राई टू डायरेक्टली अटैक द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है? राधा, यू रिमेम्बर हमने कौन सा प्रॉब्लम किया था? यहाँ पे लैडर वाला प्रॉब्लम किया था, याद है? हाँ, बिल्डिंग वाला. हाँ, बिल्डिंग लास्ट वाला. ये वाला, ये तो वाटर वाला ऑलमोस्ट किए थे. हाँ, चारों किए थे शायद. सारे किए थे क्या हमने? शायद हाँ, लास्ट वाले शायद सारे किए थे, 4 वो. अच्छा, ठीक है. सो मानस, Yes. can you solve the fourth one? Can you try to attempt the fourth one? Find the equations of the tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 which are parallel to the x-axis. एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इस टेंजेंट्स की कुछ भी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है ये. अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. so okay, fine. Let us do that. I'm launching a new session here. Okay. Just taking a small water break. Okay. Okay. So can you identify कि जो कोनिक सेक्शन जो कभी जो दिया रहता है इक्वेशन, इज इट अ पैराबोला, सर्कल, क्या है?
वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? हाँ उतना कर सकते हैं। हाँ, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम? हम्म, इक्वेशंस से, मतलब अगर इक्वेशन से मैच हुआ तो फिर कौन सी इक्वेशंस? मुझे इक्वेशन बताओ फिर। हाँ बताओ, कैसे मैच करोगे इसको? कौन सी इक्वेशन से मैच? जैसे जैसे अगर पैराबोला है तो पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a हाँ x माइनस h का स्क्वायर। हाँ, ठीक है। इफ वैसे हैव अ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, तो इसका तो काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहेगा ना, है कि नहीं? स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करो क्या, ऐसे वाले इक्वेशंस की बात करो क्या? नहीं। मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स, अगर मेरा एलिप्स अगर ऐसा रहा, तो हाउ विल आई नो कि एलिप्स है, सर्कल है, क्या है करके? मेरा एलिप्स तो कैसे भी रह सकता है ना, यहाँ पे भी रह सकता है, राइट? एलिप्स, है कि नहीं? हम्म, हाँ सो इट इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल, ठीक है? कोनिक सेक्शंस है तुम्हारे पास में पोर्शन में सीईटी के, सो यू हैव टू जस्ट गो एंड रिवाइज कि कोनिक सेक्शंस, अगर किस टाइप का कोनिक सेक्शन है आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कवर कोनिक सेक्शंस, ओके, एटलीस्ट टिल सेकेंड ऑफ May it is not possible. हम्म, Minus 2x minus 4 minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. So it is a homework for you. कोई इक्वेशन रहा, ठीक है, हो सकता है कि एक्स वाई का भी टर्म हो, राइट? एक्स वाई का भी टर्म हो सकता है, तो उस केस में फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या है करके, ठीक है? सो दैट इज योर होमवर्क, हम्म, फाइन। सो इट इज, yes, यहाँ पे मैं ट्राई करके देखता हूँ, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है, -1 -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? सो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज अ सर्कल, ठीक है कि नहीं? दिस इज अ सर्कल। yes, हाँ, सो नाउ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द tangents of the circle which are parallel to the x axis। x axis को पैरेलल बोला है, इसको बोला है yes, पैरेलल टू x axis बोला है ना उन्होंने। तो मेरा सर्कल कहाँ पे है? 1,2 पे है, सो दिस इज, लेट अस से 1 एंड दिस इज 2। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, हम्म, एंड ऐसा मेरा कहीं कैसे तो भी सर्कल है। ओके, लेट मी रीड्रॉ इट, ठीक है, ऐसा सर्कल है। सो कितने टेंजेंट्स बनेंगे मेरे yes, पास में? यहाँ पे दिस इज y इज इक्वल टू 2, राइट? तो ये yes, यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा नहीं, बिकॉज द रेडियस हाँ इज 2, हाँ राइट? हाँ है कि नहीं? yes, रेडियस, राइट? तो एक टेंजेंट क्या है मेरा, एक्स एक्सिस एक टेंजेंट तो है ही इसका, राइट? है कि नहीं? और हम्म, दूसरा मुझे फाइंड करना है, करेक्ट? हम्म, दूसरा मुझे फाइंड करना है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? आई कैन पुट इट बाय, I can find it by putting dy by dx is equal to 0, right? उसका स्लोप 0 है, राइट? स्लोप 0 रहेगा ना, हाँ which is parallel to x axis, उसका स्लोप 0 रहेगा कि नहीं? है कि नहीं? हाँ जीरो रहेगा। हाँ, so I have x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 4, correct? So y minus 2 whole square is equal to 4 minus x minus 1 whole square, correct? Y minus 2 yes, is equal to under root of 4 minus x minus 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, मतलब y इज इक्वल टू ये, करेक्ट? अब मुझे dy yes, by dx इज इक्वल टू 0 ऐसा पुट करना है, राइट? मुझे dy by हाँ dx इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो मुझे क्या मिलता yes, है? मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? क्या मिलेगा इसको dy by dx इज इक्वल टू 0 पुट किया तो राधा क्या मिलेगा? तो minus,
पहले डिफरेंशिएशन बताओ मुझे, क्या आएगा मेरे पास में। लेट अस से दिस इज 4 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ आएगा, ठीक है, और इंटू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा आएगा ना मेरे पास में, करेक्ट हाँ है कि नहीं। बराबर। हाँ, and if this has to be equal to 0, then my x has to be equal to 1, x has to be equal to 1, ठीक है। हाँ राइट यस। हाँ, so if my x has to be equal to 1, then what does my y has to be, तो मुझे फिर वहां पे पुट करके देखना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मुझे क्या क्या वैल्यूज आएंगे, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया मेरे पास में, सो y माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 डाल दिया ना मैंने, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हाँ सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और मतलब y माइनस 2 इज एक्चुअली व्हाट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, राइट, है कि नहीं, यस यस। अंडर रूट ऑफ 4, राइट। y minus 2 whole square is equal to 4, so y minus 2 is equal to under root of 4, so y is equal to plus minus 4 minus plus 2, right, है कि नहीं। so या तो minus 2 plus 2, जैसा कि मैंने बोला कि y is equal to 0 मतलब x axis, right, and y is equal to 2 plus 2 is equal to 4, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ गया। सो दो लाइन से, थैंक यू, ठीक है। सिमिलरली अब बताओ, यहाँ पे मेरे पास में कुछ 7 से लेके तो 16 तक कुछ 9 वर्ड प्रॉब्लम्स है। कैन यू टेल मी विच वर्ड प्रॉब्लम आई शुड टेक। हेलो मानस, कैन यू टेल मी, टेल मी क्विकली, ओके। 14th 14th वाला वीक है, वी हैव डन, राधा विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। then 13th 13th वाला, yeah, 13th वाला also we have done. राधा, हेलो, Yes, sir. मानस, 13th and 14th, Yes, पक्का। I will try, sir. हाँ, not now, later, okay. You give him the solution, give him the solution in Yes, written, sir. ठीक है, रिटर्न में करके उसको फोटोज भेज देना, ठीक है। आई विल टेक अनदर वन, I'll take the 8th one, which is a simple problem relatively. A spherical soap bubble is there, it is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second, okay. Its radius is increasing, at what rate is the surface area increasing when its radius is 5 centimeter? Are you able to see the screen? Hello? yes yes. Yeah. So we know that dr by dt, they have given it as what? How much? 0.02 centimeter per second, right? 0.02 centimeter per second. Fine. Yeah. Now we have to find out. We have to find out its what is the rate at which the area is increasing when its radius is 5 centimeter. Okay. So we have to find out dA by dt, correct? And we know A is equal to 4 pi r square, correct? Yes. So dA by dt is equal to 8 pi r dr
by dt. dr by dt. Yes. ठीक है, and we know dr by dt. Okay, and they have also given this radius, right, at 5 centimeters. So 8 into pi into 5 into 0.02 centimeter per second, which is equal to 40 pi into 0.02. So 40 pi means what? 80 pi into 0.02, correct? Yes. 80 into 0.02. नहीं, 40 into 0. Sorry, 40 into 0.02 मतलब 0.8 pi centimeter per second, centimeter square per second, है कि नहीं? Centimeter square per second. Don't forget to write the units. Okay, fine. Yes. Let's take a break of 15 minutes. Then we'll be back. Yes. So we are going to learn approximations. I don't know CET में इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं? राधा देखा है क्या approximations के ऊपर? देखा है कभी CET का क्वेश्चन? नहीं। मानस देखा है क्या approximations का कोई क्वेश्चन? आते पर ज्यादातर वो रेट वाले आते, रेट और टेंजेंट वाले। approximations वाला नहीं आता है? कम आता है। अच्छा, कम आता है। ओके, सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन उन्होंने कैसा डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया उन्होंने, ठीक है? f dash a is equal to f of a plus h minus f of a by h. Here h is tending to 0, right? बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट किया है इसको, ठीक है? So we get f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash a. This is the formula that they are using finally for the calculation. ठीक है? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? So I'll take this example number 3. यहाँ पे देखिए काफी सही एग्जांपल है ये, ठीक है? Here 1 degree is equal to 0.0175 radians. ये radians है, okay? Fine? Okay, yes. And cos 30 degree is equal to 0.866. Okay? So what is f dash x? F dash x is cos x, ठीक है? उन्होंने sin x लिया. So अभी then they are putting a is equal to pi by 6 and h is equal to 0.00875. ये इन्होंने क्या लिया है, ठीक है? They have taken it as you know, वो लोग रेडियंस को मतलब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ठीक है? तो उसके बाद में वो लोग क्या कर रहे हैं, f dash a is equal to f dash pi by 6 is equal to 0.0866 and then f of a plus h is equal to f of a plus h into f of f dash a. So it is 0.5 plus 0.00875 dot into 0.866, तो इनका फाइनल आंसर ये मिलता है, ठीक है? This is an approximate way of finding the answer. ठीक है? I'll just take one example, ठीक है? I'll just take one example, ठीक है? So I'll take the fifth का पहला वाला log of 101, log of 101, okay? ठीक है? Log of 101. हाँ, so इसको कैसे करेंगे? मानस any idea? I have the formula f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of a. So what should I take f of x here? F of x क्या लूँ मैं? Log x लूँ? Yes. ठीक है? और can I take it as
लॉग ऑफ, हाँ ठीक है, लॉग एक्स लेता हूँ, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, करेक्ट है कि नहीं? हाँ। ठीक है, फाइन। एंड देन हमें एच क्या है नहीं पता है, ठीक है। एच क्या है हमें नहीं पता है, करेक्ट। सही बात। हाँ। एच हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। एच विल टेक इट एज 1, ठीक है, मतलब 100+1 है ना ये, सो विल टेक एच एस 1, ठीक है। सो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एफ ऑफ 100+1 इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। मतलब एफ ऑफ ए क्या है मेरे पास में, एफ ऑफ 100 प्लस एच मतलब 1 इंटू एफ डैश ऑफ ए, करेक्ट, ऐसे बोला ना उन्होंने, हाँ। ठीक है। सो एफ ऑफ 100 अगर मैं लेता हूँ, सो दिस इज लॉग ऑफ ई 100, राइट, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1/एफ डैश ए क्या है, 1/x है। मैं x की जगह पे क्या डालूंगा, फिर 100 डालूंगा, ठीक है। हाँ। तो दिस इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ ई इंटू 10, करेक्ट। यस। एंड उन्होंने क्या दिया है, 2.3 दिया, राइट, 2.3026। सो दिस इज प्लस 0.01, सो 2.3026 इंटू 2 प्लस 0.01, यही रहेगा ना आंसर मेरे पास में, हाँ। हाँ। ठीक है। सो 4.6052 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 4.6152, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। हाँ। सो अगर सपोज सिर्फ एफ ऑफ 100 लेना होता तो मेरा इतना आंसर आता। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट आई एम एडिंग, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। मेरा एच यहाँ पे 1 है, इसलिए मेरा 1 इंटू 1/100 हो गया, है कि नहीं, एफ डैश एफ ए 1/100 है ना, है कि नहीं। तो दिस इज द आंसर, काफी सिंपल है। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग अहेड, ओके। रोलिस थ्योरम में जैसे तुमने बोला था कि रोलिस थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में बेसिकली प्रॉब्लम है ठीक समझने में। So, अब रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, दैट फॉर एनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट अटेन्स इक्वल और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट must have at least one stationary point somewhere in between them, that is the point where first derivative of the slope of the tangent is 0. डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, मतलब सेपरेट करना ना, तोड़ना। नहीं नहीं, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका क्या मतलब आता है, मतलब वो कंटिन्यूअस है। मतलब वो कंटिन्यूस है कि नहीं। डिफरेंशिएबल का स्ट्रेट मतलब है कि इट इज कंटिन्यूस, और कहीं पे भी कंटिन्यूअस। यस। उसका जो स्लोप है वो किसी भी पॉइंट पे एब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा है, इट इज अ नहीं हो कंटिन्यूस रहा। स्लोप, हाँ। राइट, है कि नहीं। यस। यस। तो वो बोल रहा है कि लेट अस से एक फंक्शन मेरे पास ऐसा कंटिन्यूस है, जस्ट दिस थिंग, ऐसा अगर सपोज कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और वो किसी दो पॉइंट में इक्वल है कि नहीं, ये एफ ऑफ एक्स x1 है, ठीक है, लेट अस से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, करेक्ट, समझ में आया ना। तो और ये हाँ। क्या क्या है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका यही मतलब निकलता है एट सम पॉइंट, एक कोई तो भी पॉइंट है जहां पे ये स्लोप मेरा 0 हो रहा है, कोई तो भी पॉइंट है, मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, ऐसा 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 अगर फंक्शन था तो मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पे 0 है, राइट, स्लोप, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे हाँ। वैल्यू सेम है, राइट, है कि नहीं। यस। तो मल्टीपल पॉइंट्स भी हो यस। सकते हैं, अगर मैंने इंटरवल ए से भी ऐसा लिया है तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, करेक्ट है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, रोलिस थ्योरम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि चेक वेदर रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग फंक्शंस इन द इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल जो है वो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ 0 पे अगर मैंने ये एग्जांपल नंबर 1 एफ ऑफ 0 अगर मैंने डाला, ठीक है, आई गेट 2, है कि नहीं, एफ ऑफ 0 मुझे 2 मिलेगा। राधा आर यू देयर और नॉट, Yes, Sander. हाँ, और एफ ऑफ 3/2 डाला तो क्या मिलेगा मुझे, तो 0 मिलेगा क्या, सॉरी 2 मिलेगा क्या,
कैलकुलेट डाल के देखो जल्दी, अभी 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2 मिनट, 1 ही मिनट है डाल डाल के देखने के लिए। 27/8 इंटू 2, 27/4 माइनस 4, 9, 45/4 प्लस 3 3 9/2। 27/4 minus 51/4 minus 45/4। है क्या? 54। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये है करके, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2 डाला, तो यहाँ पे रोलिस थ्योरम इज वैलिड ऐसा बोल रहा है। एंड दूसरी बात, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। यस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसमें कोई डाउट मत रखना, अनलेस एंड अनटिल कि डिनोमिनेटर में कुछ टर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, राइट, तो ये डिफरेंशिएबल है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। हाँ अब यहाँ पे उसी के बेसिस पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, उसी के बेसिस पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। तो they are saying that there is a point C in between B and A or A and B where f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a, ठीक है। We are just directly going to take the one solved example, okay, fine. यस सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी यही कंडीशन है कि वहां पे जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है, सो दिस इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एंड व्हाट इज द अदर प्रीरिक्विजिट? कोई दूसरा प्रीरिक्विजिट है क्या इसके लिए? रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए विच इज कंटिन्यूअस एट 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 3, मैं 7th का 5th वाला ले रहा हूँ, ठीक है। f of x इक्वल टू x minus 1 by x minus 3, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा x is equal to 3 मेरा इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज x is equal to 3 दिस इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। सो x is equal to 3 इज नॉट देयर इन द करेक्ट इन द इंटरवल, तो मैं डेफिनेटली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे लगा सकता हूँ, है कि नहीं? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? सो सो अगर सपोज मैंने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाया, ठीक है, सो देयर इज, अभी मुझे c निकालना है यहाँ पे, f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, ऐसे ही बोला ना उन्होंने, ठीक है। तो f of b मैंने अगर देखा तो 5 minus 1 by 5 minus 3 मतलब 2 minus 5 minus 4 minus 1 by 4 minus 3 upon 1, correct? So this is 2 minus 3 by 1, which is equal to minus 1. So this is the slope you will get, okay? They are saying ये एक स्लोप आएगा। अब इस स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी डोंट नो, मतलब इसका एग्जैक्टली इन्होंने थोड़ा सा, मतलब थ्योरी थोड़ा सा काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन कहाँ पे आता है इन्होंने बताया नहीं। बट यस, द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आर वेरी वेरी वैलिड। ओके राधा, कैन यू टेल मी इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है? Yes, sir. बताओ इंक्रीजिंग कब होता है कोई फंक्शन?
जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास उतना। Sir, I need to revise it. ठीक, अभी रिवाइज क्या है यार, अभी एग्जाम है अपनी। ठीक है, 10 तारीख को अपनी एग्जाम भी है ना। मानस, कैन यू टेल मी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? हाँ हाँ, एक सेकंड। मेरे को अभी तक मतलब कंफ्यूजन मेरे को ही है, एग्जाम मैं लिख रहा हूँ कि तुम लोग लिख रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके आ रहा हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। हेलो, यस, जल्दी बताओ, व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन? कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? एट वन पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के आगे, या फिर उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हाँ, लेट अस से देयर इज एन इंटरवल ए और बी, ठीक है। तो वहां पे हम्म, इन दैट इंटरवल फॉर एवरी पॉइंट, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। और उस इंटरवल में अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो पक्का then उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। कोई डाउट है? हम्म, तो दे विल नहीं, बी आस्किंग यू कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है। वहां पे क्या वो हम्म, आंसर दोगे उनको कि सर मेरे को थोड़ा रिवाइज करना है करके? क्या ये आंसर देने वाले हो वहां पे, आई नीड टू रिवाइज? नहीं, मैंने तुमको पहले ही बोला था, वेन एवर आई एम टेकिंग अ टॉपिक यू हैव टू कम एंड रिवाइज। रिवाइज करके ही आओ, नहीं तो मत आओ। ओके, okay, then yes, the second theory is we'll take some questions, definitely we'll take questions, but let me revise the theory first. Maximum of a function, maximum of a function क्या है कि जहां पे वो उसके आगे जो है, ओके, लेट मी, हम्म, ये जैसे इंक्रीजिंग है यहाँ पे ऐसा, तो ये हमेशा स्लोप ग्रेटर देन 0 है ना, ऐसा है कि नहीं? हम्म, कहीं पे कोई हाँ, भी मैंने टेंजेंट बनाया, इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? यस और नो? यस, हाँ, तो डाउट है इसके ऊपर? और अगर सपोज मेरा डिक्रीजिंग है नहीं, फंक्शन, ऐसा है डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, राइट? तो हमेशा मेरा स्लोप जो है हम्म, नेगेटिव आएगा ना, है कि नहीं? हम्म, मेरा स्लोप हम्म, नेगेटिव आएगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग, राइट? है कि नहीं? हम्म, समझ में आया हाँ, मैंने क्या क्या लिखा है हाँ, यहाँ पे? हम्म, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पहली बात तो, मैक्सिमा अगर है तो वहां पे तो पहली बात तो स्लोप 0 होता है, ठीक है। उसके हम्म, इमीडिएटली बाद में जो स्लोप होता है वो डिक्रीजिंग होता है, और उसके पहले स्लोप इंक्रीजिंग होता है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर मिनिमा है तो उसके बाद में, जस्ट इस पॉइंट के बाद में स्लोप विल बी इंक्रीजिंग, और उस पॉइंट के पहले यहाँ पे स्लोप विल बी डिक्रीजिंग, राइट? और नेगेटिव स्लोप, यस, है कि नहीं? हम्म, और अगर यस, सपोज, तो उसको उन्होंने दिए हैं, 2 टेस्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, फाइन। उसके ऊपर उन्होंने कुछ हम्म, प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, ठीक है। एंड देन दे हैव गिवन अ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आल्सो, ठीक है। सो योर, इफ it is a maxima if your second derivative is less than 0 at that point, and it is a minima if your second derivative at that point is greater than 0. This is a printing mistake, okay? ये printing mistake है, समझ में आया? हेलो, हाँ, ये printing mistake है। यस, और minima f double dash at that point has to be greater than 0, ठीक है, okay? यस, यस, Now let us take some unsolved examples. Solved examples तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Find the value of x for which f of x is equal to x by x square plus 1 is strictly increasing, strictly decreasing। सिक्स्थ का बहुत अच्छा एग्जांपल है करने के लिए, ठीक है। x by x square plus 1
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उन्होंने खुद ही इंटरवल पूछा है, ठीक है। सो इट इज x by x square plus 1 of x is equal to x by x square plus 1, करेक्ट? यस। ओके, तो अभी कैसे करोगे? पहली बात तो मैं f dash x निकालूंगा, f dash x is x square plus 1 होल स्क्वायर, ठीक है, फाइन। तो ये x square plus 1 माइनस x इंटू 2x है कि नहीं, ऐसा ही आएगा, हाँ माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आई एम नॉट, मैंने स्टेप्स एकदम शॉर्ट में लिखे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि तुमको आता है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई डाउट है कि तुमको इसमें? यस। नहीं नहीं। ओके, सो आई गेट f dash x is what is equal to 1 minus x square upon x square plus 1 whole square, ठीक है, ओके। अब यस। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, मतलब यानी कि f of x कहाँ इंक्रीजिंग रहेगा, जहां पे f of x इज ग्रेटर देन 0, राइट, है कि नहीं? यस। हाँ, तो कौन से इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है? ये सिर्फ ये इतना ही, अपने को सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, है कि नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए अपने को। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये जो चीज है ये तो वैसे ही ग्रेटर देन 0 है ना, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, ये तो वैसे ही ग्रेटर देन 0 है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑब्वियसली। मैं अनरियल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये तो ग्रेटर देन 0 है ही किसी भी हालत में, ठीक है। f डैश ऑफ x क्या है? f डैश ऑफ x क्या है? ग्रेटर देन 0 अगर मुझे चाहिए तो मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0 और माय x स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 1। So this is only possible in the interval 0 to 1, correct? बाकी इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बाकी इंटरवल्स में मतलब क्या? बाकी इंटरवल बचे कौन से फिर अपने पास में? बाकी इंटरवल मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑल्सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आया ना? कोई डाउट है इसमें? नहीं। ओके, नाउ divide the number 20 in two parts such that I'm taking the 11th wala, divide the number 20 in two parts such that the sum of their squares is minimum। ये बताओ कैसे करोगे अभी प्रॉब्लम? लेट अस टेक नंबर x है, दूसरा 20 माइनस x रहेगा, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x होल स्क्वायर, ये मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है। सो व्हाट डू आई डू? आई by dx of this whole term, है कि नहीं, एंड आई इक्वल टू 0, है कि नहीं, एंड देन आई हैव टू आल्सो वेरीफाई कि वो मिनिमम है। ये मेरा टोटल फंक्शन है, सो दिस इज माय टोटल फंक्शन f of x, ओके, एंड आई एम d of f of x d by dx of f of x, करेक्ट, है कि नहीं? सो दिस इज इक्वल टू 0 क्या है? सो 2x प्लस 2 इंटू 20 माइनस x इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, है कि नहीं? यही है ना? ऐसे ही करना है ना? सो 2x माइनस 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, ये मेरी वैल्यू आई। नाउ आई हैव टू वेरीफाई दैट दिस इज अ मिनिमम वैल्यू, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। ये कैसे वेरीफाई करूंगा मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, डबल डिफरेंशिएट किया तो मुझे, मेरे पास क्या आएगा? 4 आएगा मेरे पास आंसर। f डबल डैश x निकाला तो मेरे पास 4 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। दिस फंक्शन ऑलवेज विल हैव ओनली मिनिमा, मतलब इसका ये मतलब है दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे मतलब एक ही मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? दैट इज x इज इक्वल टू 10, ठीक है। यस। तो उन्होंने, तो मेरे अगर सपोज मुझे 20 को, अगर मुझे उन दोनों का सम अगर मुझे सबसे छोटा चाहिए तो मुझे 20 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, दिस इज द इन्फरेंस, राइट। मुझे 10-10 में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके उन दोनों का सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी मिनिमम, मतलब 100 प्लस 100,
अगर सपोज मैंने 14 और 6 में डिवाइड कर दिया, 14 और 6 में डिवाइड कर दिया, व्हाट इज 14 स्क्वायर, व्हाट इज 14 स्क्वायर, 196. 96. 196, व्हाट इज 6 स्क्वायर, हम्म। 36। तो उनका सम कितना है मेरे पास में, 200 से ज्यादा आया, ठीक है। हाँ मैं दूसरा रेशियो लिया, 11 9 लिया, ठीक है। तो दिस इज 11 स्क्वायर इज 121, 9 स्क्वायर इज 81, कितना है ये, 202 आया। अगेन दिस इज ग्रेटर देन 200, राइट, है कि नहीं। ये हाँ ये 200 मतलब लीस्ट स्क्वायर मेरा 200 है, बिकॉज आई इफ आई पुट x is equal to 10 I will get other number is also 10, right। तो मेरा लीस्ट स्क्वायर इज 200 only and only if I divide it into 2 equal parts, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म ओके। यस नाउ दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है, सो लेट अस ट्राई टू डू मैक्सिमम प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस थिंग, ओके, ठीक है। क्या कैन यू टेल मी, 24 24th, prove that y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta for theta belonging to pi by 0 to pi by 2, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है वो, 4 sin theta upon 2 plus cos theta, राइट। 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta, right। I do d by d Yes. theta, I do d by d theta, this is a function of theta only, right, है कि नहीं। मुझे क्या आएगा यहाँ पे 2 plus cos theta होल स्क्वायर, करेक्ट। यस यहाँ पे आएगा 4 cos theta इंटू 2 plus cos theta, ठीक है, माइनस यहाँ पे एंड यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा, ऐसे ही आएगा ना यहाँ पे, हाँ है कि नहीं, एंड -1, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इसका डिफरेंशिएशन -1 है, करेक्ट, है कि नहीं। सो आई गेट, तो मेरे पास क्या आया, नाउ दिस थिंग, ये जो है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट, है कि नहीं। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, 2 plus cos theta होल स्क्वायर, है कि नहीं। सो आई गेट 8 cos theta प्लस 4 cos square theta प्लस 4 sin square theta, ठीक है, होल अपॉन 2 plus cos theta होल स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मेरे पास में ये तो मेरा 4 ही है, राइट, sin square theta plus cos square theta, दिस इज 4 ओनली, सो 8 cos theta plus 4 upon 2 plus cos theta whole square -1 is greater than 0, ठीक है। I take 4 common, I take 4 common, I get 2 cos theta plus 1, ठीक है, minus 2 plus cos theta whole square is greater than 0, करेक्ट। क्योंकि अब ये मैं वहां पे, अगर ये मैंने यहाँ पे फिर से लिखा भी, और मैंने अगर सपोज इस पूरे इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई भी किया, वो भी कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज अ ग्रेटर देन 0 नंबर, यस और नो, ग्रेटर देन 0 नंबर ही है ना, है कि नहीं, हाँ ठीक है। सो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, 8 cos थीटा, ठीक है, प्लस 4 -4 cos थीटा प्लस, सॉरी, माइनस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, ठीक है। 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो आई गेट 4 cos थीटा minus cos square theta is greater than 0, so I get cos theta
into 4 minus cos theta is greater than 0. ये तो हमेशा ही greater than 0 रहेगा, ये हमेशा ही greater than 0 रहेगा, करेक्ट Yes. है कि नहीं? क्योंकि इसकी हाँ. लीस्ट वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 ही है ना, तो ये तो हमेशा greater than 0. So we are only left with cos theta has to be greater than 0, which is there. 0 to pi by 2 बोला है तो ऐसा ही है. This is greater than 0, right? ठीक है. Okay. Stopping the recording now.